Good morning, students. How are you all? Welcome again to the online classes. We were learning the exercise of chapter number 5, solids, liquids, and gases. Some exercise we have learned. Today we will continue the exercise of this chapter. So, in this, it is given. Write the names of any three solids, liquids and gases in the empty boxes. You have to write the three names of solids, liquids and gases. Three each. Okay. The boxes are given. Blank boxes are given in your textbook. You have to write the names here, answers here. Okay, so first one is solid. There are different solids, you know, in your daily life also. So here today we will write the three names like stone, button and plate. These are the solids. Okay, next one is given liquid. Liquids में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. You know that. We will write here ink, milk and water. Or in the three boxes we will write ink, milk and water. Third one is given gases. In gases we will write perfume, oxygen and smoke. Okay. In gases we will write perfume, oxygen and smoke. So you have to fill these boxes with the names of three solids, three liquids and three gases. Now we will read the question answer of this chapter. First one is given, write short answers. So first question is given, what is matter made up of? We know here that matter is made up of molecules. मैटर किसके बने हुए होते हैं? मैटर मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन is given, what are molecules? In first question we have learned that matter is made up of molecules. Then what is the meaning of molecules? In the second question, what are molecules? So molecules are tiny particles that make up matters. Okay, so what are molecules? Molecules are tiny particles that make up मैटर. जिससे मैटर बनता है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कोई चीज़ बनती है ना. जैसे आपको एग्जाम्पल हमने दिया था क्लास में भी. वी हैव लर्न दैट कंपास बॉक्स, देन लंच बॉक्स, they are made up of plastic. Bottles also, they are made up of plastic. Then doors, windows, they are made up of wood. Okay, so different types of things are made up of different types of molecules, and molecules make up the matter. Now third question is given, name a solid that turns to liquid when taken out from the refrigerator. आपको एक ऐसे सॉलिड का नाम लिखना है इसमें जो कि बाहर आने के बाद फ्रिज से जब आप उसको बाहर निकालते हो, रेफ्रिजरेटर से जब आप उसको बाहर निकालते हो, देन इट टर्न्स इनटू लिक्विड. यस, यू नो दैट. its name? Its name is ice. Ice changes into liquid, or ice changes. Ice is a solid, and when it is taken out from the refrigerator, it changes into liquid, that is water. Okay, next one is given, name a liquid that you drink often. आप डेली में जो ड्रिंक पीते हो, you have to write that liquid's name here. You can write here milk. Okay, what you will write? Milk. Next one is given, name a gas that you use for breathing. जो हम सांस लेते हैं, है ना, हम ब्रीद करते हैं, तो ब्रीदिंग में हम कौन सी गैस को यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन. OXYGEN. Oxygen we are using for breathing. Now
answer this question, question number E. Okay, in this first one is given, how will you show that a gas does not have a fixed volume? कैसे आप बताओगे कि एक गैस जो होती है, गैस की फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है? हाउ विल यू टेल? यू विल गिव द आंसर, गैसेस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. जो गैसेस होती है उनका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है. इट स्प्रेड्स एंड ऑक्यूपाइज ऑल द वॉल्यूम दैट इज अवेलेबल टू इट. जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं? वो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, एंड इट ऑक्यूपाइज ऑल द वॉल्यूम. उसको जो भी वॉल्यूम मिलती है, जितनी भी स्पेस मिलती है, वो उसको क्या कर लेती है? कवर अप कर लेती है. ओके, इट स्प्रेड्स एंड ऑक्यूपाइज ऑल द वॉल्यूम दैट इज अवेलेबल टू इट. स्मोक राइसेस अप इनटू द स्काई टू ग्रेट हाइट. जो स्मोक होती है वो कहाँ जाती है? बहुत ऊंचे तक जाती है ना? हाई इन द स्काई, अप टू ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचे तक वो जाती है. एज पार्टिकल्स ऑफ स्मोक आर कैरिड अवे बाय एयर. ऐसे ही स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी किसके द्वारा अलग जाते हैं? किसके द्वारा दूर तक जाते हैं? दे आर कैरिड अवे बाय द एयर. जो हवा होती है उसी के थ्रू वो जो स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी दूर दूर तक जाते हैं. Then particles of perfume are carried by air from one room to another. एक एग्जाम्पल और है, जैसे आपने परफ्यूम लगाया है एक रूम में, तो उसकी जो खुशबू है, उसकी जो फ्रेगरेंस है, वो कहाँ तक जाएगी? एक रूम से दूसरे रूम तक चली जाती है. आपको दूसरे रूम में भी उसकी खुशबू आती है. तो जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के, दे आर ऑल्सो कैरिड अवे बाय एयर फ्रॉम वन रूम टू अनदर. So these are the examples which can show that the gases do not have fixed volume. इससे पता चलता है कि जो गैसेस होती है उनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. What are the example we have given? We have given जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं. जितनी स्पेस उनको मिलती है, दे ऑक्यूपाइड दैट available space to them and they spread all over there. Then smoke also, it rises high up in the sky and all the particles are carried away by the air. Then particles of perfumes are also carried away by air from one room to another room. Next one question is given, what is the difference between the following two solutions? Here there are given two solutions name. The first one is given sugar in water and second one is given sand in water. So you have to differentiate between these two solutions. आपको इसमें अंतर बताना है. Okay, so first one is given sugar in water. So when we put sugar in water, the sugar dissolves in water. Okay, understood you? That when we put, जब हम शुगर को पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? उसमें डिसॉल्व हो जाती है, उसमें घुल जाती है. द शुगर सॉल्यूशन लुक्स सेम एज प्योर वाटर. जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो वाटर के जैसा ही हमको दिखाई देता है. एज द शुगर पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन. और जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो हमको उसमें दिखाई नहीं देते हैं. Okay, when we put sugar in water, the sugar dissolves in water and the sugar solution looks same as the pure water, as the sugar particles cannot be seen. Next one is given sand in water. When we will put sand in water, then the sand does not dissolve in water. We all know that जो रेत होती है, बालू रेत जिसको बोलते हैं, मिट्टी जो होती है ना, तो मिट्टी क्या होती है? पानी में घुलती है क्या? सैंड जो होती है पानी में घुलती है क्या? आप देखोगे, यू विल सी दैट द सैंड व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन वी पुट सैंड इन वाटर देन इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. जब हम सैंड को पानी में डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी. इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द जार. वो क्या होगा? बॉटम, जार के बॉटम में सबसे नीचे जाके क्या हो जाती है? वो बैठ जाती है. यू हैव सीन दैट. देन एंड कैनॉट बी सीन एज बीइंग सेपरेटेड विथ फ्रॉम वाटर. ओके, इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द जार. वो क्या होती है? पानी में
नीचे जार में नीचे जाकर बैठ जाती है और आपको इट कैनॉट बी सीन एज बीइंग सेपरेट फ्रॉम वाटर, और आपको पानी से वो अलग नहीं दिखाई देगी, वो आपको पानी में ही दिखाई देगी और वो नीचे बैठी हुई आपको दिखाई देगी. Next question is given, when sugar is dissolved in water, the volume of the solution does not change. Why? जब शुगर को आप पानी में घोलते हो तो जो सॉल्यूशन होता है उसका वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होता है? Why does the volume of the solution does not change? So yesterday in previous class we have learned one experiment there, in which we have done the experiment to see the volume of the solution and volume of the water are the same or not. We know that the volume of the solution does not change when sugar is dissolved in water, because क्यों ऐसा होता है? Because the sugar molecules scatter throughout the वाटर. जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं? इधर उधर बिखर जाते हैं एंड ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी में इधर उधर बिखर जाते हैं और जो वाटर के बीच की जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई करते हैं. द शुगर मॉलिक्यूल्स डज नॉट नीड द एक्स्ट्रा स्पेस. जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए होती है. दैट इज़ वाई व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज. इसीलिए जो शुगर होती है जब उसको पानी में घोलते हैं, डिजॉल्व करते हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज. नेक्स्ट वी विल रीड थिंक एंड आंसर. वी ऑलवेज नीड, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, वी ऑलवेज नीड टू स्टोर लिक्विड्स इन कंटेनर्स. वाई? हम हमेशा लिक्विड को कंटेनर में ही क्यों स्टोर करते हैं? लिक्विड को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स की ही ज़रूरत क्यों होती है? बर्तनों की ही ज़रूरत क्यों होती है? ये वी हैव टू राइट इन दिस. यू नो दैट द सॉलिड को किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है क्या? किसी सॉलिड को रखने के लिए ऐसे प्रॉपर एक कंटेनर की कि नहीं भैया इसी में ही रखना है, नहीं होती है. जैसे आपने टेबल देखा है, बेंचेस देखी है ना, ब्लैक बोर्ड देखा है, तो इनको एक कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे हैव देयर फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. बट liquids always need to be stored in containers because liquids do not have a fixed shape. लिक्विड को कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं दे कैन मूव अराउंड. जो लिक्विड्स होते हैं वो इधर से उधर फैल जाते हैं. लिक्विड्स कैन ऑल्सो फ्लो. आपने देखा होगा जैसे तेल अगर गिर गया है, ऑयल अगर आपके फर्श पर गिर गया है तो वो क्या होता है, वो फ्लो करता है. ओके, because the oil does not have fixed volume and the molecules and the particles of the oil are loosely packed, है ना. ऑयल जो होता है उसके पार्टिकल्स भी कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं. सिमिलरली वाटर ऑल्सो एंड मिल्क ऑल्सो, इंक ऑल्सो, दिस आर दी लिक्विड्स. सो लिक्विड्स कैन फ्लो. लिक्विड क्या होते हैं, अगर आप उनको बाहर रखोगे तो वो क्या होने लगते हैं, बहते हैं, है ना. देन दैट इज वाई दे आर स्टोर्ड इन कंटेनर्स. इसीलिए उनको कंटेनर्स में स्टोर करते हैं. जैसे लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव अराउंड एंड लिक्विड्स ऑल्सो फ्लो, सो दे ऑलवेज need to be stored in containers. The next question is given, the smell of a perfume spreads very quickly from one corner of the room to the other. Why? जो स्मेल होती है परफ्यूम की वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चली जाती है, जल्दी स्प्रेड होती है, फास्ट स्प्रेड होती है. वाई इट इज़ सो? गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम. जो गैसेस होती है उनका भी क्या होता है, ना तो कोई फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है. ओके, सो द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड.
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो भी कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं एंड कैन फ्लो इजीली इन एंड क्विकली। वो भी क्या होते हैं, आसानी से और जल्दी फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। That is why the smell of a perfume spreads very quickly from one corner of the room to the other. Understood all of you? That the gases also do not have fixed shape and fixed वॉल्यूम। गैसेस का भी कोई फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी लूजली पैक्ड एंड दे कैन फ्लो इजीली एंड वेरी क्विकली। ओके, सो the smell of a perfume spreads very quickly from one corner of the room to the other. We have completed here our chapter and the exercise of this chapter question answer also we have completed here. All of you should learn the question answers and exercise of this chapter. Thank you all of you.